Respected chairman of the session and veteran journalist, Professor Nalpat, respected and Shraddheya Paramacharya Sadashivanath Swamiji, Sri Lokesh Maharaj, who has come all the way from Trinidad and Tobago, and if I'm getting the pronunciation right, from Mauritius, Sri Kiran Ramasahib, Ramsahib, yeah. Sri Sushil Pandit, ladies and gentlemen. We heard Swamiji and it's quite an eye-opener. My speech deals with basically from Indian perspective. When Sushil Pandit, whom I know from my JNU days, invited me for this event, I didn't have to think twice, because Sushil is known for his contribution in the field of media and communication, and I greatly admire him as a professional, and I value him as a great friend. Thank you, Sushil, for inviting me. But you know, when I received the invitation, formal invitation, I was a bit puzzled, let me admit it, because the title of the conference was Hindu Media Conference. Because in my 25 years of journalism, I never heard this phrase called Hindu media. I never, thought in the context of religion. And I always thought media is media. And I don't think it can be painted in a narrow religious context. Today, I'm here as a journalist, as a media person, and from a professional standpoint, and in the Indian context. This is an important event, important news event, because professionals from across the world has gathered together to discuss the issues pertaining to Hindu. Because when you think of Hindu, you always think of, Bhagwa Veshdharis, sadhus, but never people thought in context of professionals getting together to discuss issues of importance. Then I, searched what is this all about, and I stumbled upon Sushil's Facebook page on this. He put a post on this, and let me read some of the reactions that came on the post. So one Mr. Dvipal Kumar Bose writes, I have been a media person for over 50 years. I have never heard a term called Hindu media. Another Mr. Avinash Chandra Saxena responded by stating, and I quote, Hindu media was something unusual in journalism. Another senior, an ex-BBC, Ramananda, who is a friend of mine, and he writes, Googling Hindu media, Islamic media, Christian media, and amazed at the results thrown up. Eye-opening. I couldn't go beyond that. And one Mr. Om Prakash Trehan wondered if there was any Hindu media person in our country. I don't know. Now let me steal a quote from Sushil's post. And Sushil responded to these posts by saying, and I quote, media is media, but when Hindus from across the globe get together to understand its processes, to use such an understanding for the larger good of their own society stroke community, they call such an event Hindu Media Conference. Rightly put. I agree with Sushil wholeheartedly. Media is media.
And let's understand and be clear that there can be no Hindu media, Muslim media, or for that matter, Christian media in that context. And I would feel that let's confine media away from narrow religious context. अगर मैं हिंदी में इस बात को कहूं तो मीडिया सिर्फ मीडिया है, उसे मजहबी आधार पर बांटना ना तो संभव है, न तर्क संगत है और न उचित है, खासकर भारतीय समाज में। और भारतीय समाज बहुत इंक्लूसिव है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व उसकी आस्था का केंद्र बिंदु है, उसके डीएनए का हिस्सा है। और इस नाते मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है जो जैसा है, जैसा हो रहा है, उसे वैसा दिखाना और समाज के सामने रखना, ताकि समाज उससे सबक लेके आगे जा सके। अगर खुद हम मीडिया को रंग देंगे या उसे मजहबी चश्मा पहनाएंगे तो वो वैसा नहीं दिखा पाएगा जैसा है, वह शायद अपनी मर्यादा को खो देगा। ये हो सकता है कि जो मीडिया संस्थान हैं उनकी अपनी प्रतिबद्धता या नजरिया हो। मीडिया का नजरिया नहीं होगा, लेकिन जो संस्थान है उनका नजरिया, उनकी प्रतिबद्धता हो सकती है। और ये निर्भर करता है उनकी संरचना, वो कैसे हैं, और उनके मालिकाना स्वरूप पर। संस्थानों के झुकाव हो सकते हैं, बायसेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई राजनीतिक दल अखबार चलाते हैं। दक्षिण में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने टेलीविजन चैनल चलाती हैं। कुछ धार्मिक संस्थान भी ऐसा करते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए उनके अपने आग्रह हैं, लेकिन समाज को वो पूरे स्पष्ट हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं। और जब समाज उनको अच्छी तरह से जानता है तो उनका महत्व और प्रभाव दोनों ही सीमित हैं। भारत के चुनावों की बात करें, अभी स्वामी जी बात कर रहे थे 2014 के चुनावों की, मई में जो कुछ हुआ। अगर सिर्फ मीडिया के कुछ लोग प्रभावित कर पाते तो ये परिवर्तन संभव ही नहीं थे। भारत के राजनीतिक पटल पर जो परिवर्तन पिछले कई सालों से, एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए भारतीय समाज ने इस बात को बार बार सिद्ध किया है कि जो बायसेस हैं कुछ ग्रुप्स के, वो पूरे समाज को उतना प्रभावित नहीं करते। संस्कृत में जैसा कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अतिवादी विचार की जगह ना तो भारत में है न भारतीय मीडिया में। हमारा डीएनए ही ऐसा है। हमारी चिंतन परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विलक्षणता और आम भारतीय की बुनियादी समझ सब इसी की ओर इंगित करती है। वैसे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। हिंदू क्या होता है, हिंदू को किस तरीके से परिभाषित करना चाहिए, हाउ टू डिफाइन, रीडिफाइन, अंडरस्टैंड हिंदू, वो उसकी तार्किक, तात्विक, सैद्धांतिक परिभाषा कर सकते हैं। दार्शनिक व्याख्या भी हो सकती है। लेकिन मुझसे अगर मेरी सहज बुद्धि से पूछा जाए तो हिंदू किसी खास पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ शब्द या परंपरा नहीं है। इसका मतलब इसकी कोई मजहबी मान्यता नहीं है। एक लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हिंदू का, और वो एक व्यापक सांस्कृतिक
बोध का परिचय देता है, यानी एक जीवन शैली या जीवन जीने का तरीका। अब योगा को कैसे कोई हिंदू कहेगा? योगा तो योगा है। अगर उसको आप सीमित कर देंगे एक नैरो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसकी मर्यादा को ही बांध देंगे, खत्म कर देंगे। इस मायने में अब मैं मीडिया पर आता हूं, मीडिया को भी एक चश्मे से देखना या एक चश्मे का रंग देना उचित नहीं होगा। भारतीय समाज की तरह उसमें भी अनेक रंग, अनेक मिजाज और अनेक विविधताएं हैं, और ऐसा वो करता भी है। मैं भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता हूं, नेटवर्क 18। हमारा न्यूज़, एंटरटेनमेंट, फैक्चुअल प्रोग्रामिंग में कई टेलीविज़न चैनल्स हैं, CNN IBN, IBN 7, IBN लोकमत, CNBC, ETV, ये सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। कलर्स, MTV, हिस्ट्री, ये एंटरटेनमेंट और फैक्चुअल प्रोग्रामिंग के चैनल्स हैं। डिजिटल में भी हमारा दखल है, फर्स्ट पोस्ट, IBN लाइव, IBN खबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रिंट में भी कुछ काम है। हमारा मूल मंत्र है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रेडिबल जर्नलिज्म। समाज में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उनको इस दो पैमाने से दिखाना, और इसलिए हमारे आग्रह और प्रतिबद्धताएं भी हैं। हमारा आग्रह और नजरिया है भारतीयता, जो भी दिखाना भारतीय नजरिए से दिखाना, और हमारी प्रतिबद्धता है भारतीय संविधान। तो मैंने कहा कि मीडिया संस्थानों की प्रतिबद्धता भी होती है, आग्रह भी होते हैं, इसलिए कोई वो निर्जल नहीं होता है, निर्रूप नहीं होता है। और इस तरीके से इस प्रतिबद्धता और इस आग्रह के साथ हम काम करते हैं। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि एक भारतीय पत्रकार होने के नाते मुझे गौरव है उसकी विरासत पर, उसकी परंपरा पर। कहीं एबरेशंस होंगे, जरूर होंगे, लेकिन वो मूल धारा नहीं है। उसकी मूल धारा जो है वो मुझे बहुत उत्साहित और आह्लादित करती है, उसमें काफी ताकत है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धन्यवाद देना चाहूँगा सुशील जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, और ख़ासकर जो प्रोफेशनल्स हैं, अभी तो मैंने सिर्फ स्वामी जी को सुना, परमाचार्य जी को, सचमुच में ये जानना कि किस तरीके से एक जो चिरंतन परंपरा है उसके हम हिस्से हैं, उसको समझना और मीडिया के नज़रिए से उसको देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।